Next thing is photosystem. The pigment are organized in the thylakoid membrane into two discrete light harvesting system, that is known as LHC, within the photosystem first and photosystem second. So photosystem दो तरीके के होते हैं, photosystem first and photosystem second. Each photosystem has one specific chlorophyll A and many other pigments bound by protein. The chlorophyll A forms the reaction center where the actual reaction takes place, while the other pigment molecules form the light harvesting system, also called antenna. In photosystem first, the reaction center is P700, which is a chlorophyll A molecule that absorbs the light at 700 nanometer. So photosystem first जो है उसके अंदर light absorb होती है 700 nanometer की. And a photosystem second, the reaction P680 chlorophyll a molecule that absorb the light at 680 nanometer. तो हम देख रहे हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जिसमें क्लोरोफिल ए है उसे फोटोसिस्टम फर्स्ट कहते हैं. इसी तरीके से क्लोरोफिल ए जो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसे फोटोसिस्टम सेकंड कहते हैं. सो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस अकर्स इन टू स्टेप्स, लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज, डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज. सो फोटोकेमिकल फेज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लाइट. द पिगमेंट एब्जॉर्ब इन द लाइट एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू ATP and electron transport. ATP synthesis and photolysis are the two major event in light reactions. Okay, now during this phase water is splitted, photolysis and oxygen is liberated. ATP and NADPH formed in this phase are used up during the biosynthetic phase. So biosynthetic phase does not directly depend on light but depends on the products of light reaction. ATP and NADPH, carbon dioxide is reduced to carbohydrate. Now photolysis of water. It is the process in which water is split into two, proton, electrons and oxygen. Now you are seeing 2H2O, 4 हाइड्रोजन बने, ऑक्सीजन O2 बन गया और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए. The water splitting complex is associated with the photosystem second and which is located on the inner side of thylakoid membrane. जो photolysis of water है ये photosystem second से belong करता है. Now the electron are used to replace the electron lost by photosystem second and the oxygen is liberated into the atmosphere while the proton accumulate in the lumen of thylakoid. Electron transport. Now electron transport, this whole scheme of electron transport is starting from photosystem second uphill the primary electron acceptor, downhill to cytochrome complex and photosystem first. Excitation of photosystem first, transfer of electron uphill to another receptor and finally downhill to NADP is called Z scheme. Because of the characteristics shape Z formed when all the carriers are placed in a sequence according to their redox potential value. Now this is the diagram of नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पर फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट है. तो फोटोसिस्टम सेकंड जो है और फर्स्ट है, देखें लाइट जब क्लोरोफिल पर पड़ती है, लाइट पड़ी क्लोरोफिल पर तो यहाँ बन गया LHC यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए और यहाँ पर फोटोसिस्टम फर्स्ट, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुए तो प्लांट में
एडीपी था, खर्च हुई हुई एनर्जी, और लाइट के एब्जॉर्ब होने पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, जो फोटोन कहलाता है, वो एडीपी के ज़रिए एब्जॉर्ब होके एटीपी में कन्वर्ट हो गया। और यही जो है हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर लाइट अगर यहाँ पर फिर दोबारा से जहाँ पर जो पड़ रही है एलएससी बना, और एलएससी बनने के बाद यहाँ पर ये फोटो सिस्टम फर्स्ट हो गया, फोटो सिस्टम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ हम देख रहे हैं कि एनएडीपी जो है वो एनएडीपी एंजाइम जो है वो थाइलेकॉइड के अंदर होता है। ओके, तो एनएडीपी के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ता जा रहा है और एनएडीपीएच बनता जा रहा है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ एनएडीपीएच। और एलएससी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और ये देख रहे हैं नीचे जो रिएक्शन है H2O, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम फ्री हो रहा है। यानी वाटर की फोटोलाइसिस जो हो रही है तो उसमें 1 ऑक्सीजन का एटम फ्री हो रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम, 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये थाइलेकॉइड के अंदर हो रहा होता है। थाइलेकॉइड में लाइट फेज में NADPH2 बन जाता है। तो हम देख रहे हैं इसे जेड स्कीम कहा गया है। देखें ये जो डैश 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 करके LSC लाइट, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये LSC से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर ये डैश 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 करके इधर को आया, ये इस तरीके से आ गया। ये शेप जो है जेड शेप हो गई है। यानी देखें LSC, देखें फर्स्ट LSC, देखें ये लाइन सीधी इधर को आई, फिर यहाँ से डैश 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 होती हुई सेकंड LSC पर आ रही है, और उसके बाद ये LSC जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में फोटो सिस्टम फर्स्ट में आ रही है। तो बिकॉज ऑफ इट इज़ फॉर्मिंग द जेड शेप, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड जेड स्कीम। सो जेड स्कीम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, नाउ फोटोफॉस्फोराइलेशन इट अकर्स इन फॉस्फोराइलेशन दो तरीके से होता है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तो अभी हमने देखा, इट इंक्लूड 2 फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड वर्क इन द सीरीज एज मैंशनड अबव द जेड स्कीम, इट इज़ कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जैसे कि अभी हमने देखा, ये जो था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का डायग्राम है, इसको अच्छी तरीके से बना लेंगे, एग्जाम में बहुत आता है नॉन साइक्लिक का। ठीक, अब इसके बारे में तो हम जान चुके। बोथ ATP एंड NADPH आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो, सिंस द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम photosystem second do not return in photosystem second but are replaced by those from water, the process is called non-cyclic. अब आता है cyclic photophosphorylation, when only photosystem first is functional and the electron are circulated with photosystem first, and phosphorylation occurs within the cyclic flow. This happens in the stroma lamella, which lacks the photosystem second and NADP reductase enzyme। तो देखें ये सनलाइट है और यहाँ पर केवल एक ही फोटोसिस्टम बना, सनलाइट जो है पड़ी क्लोरोफिल पर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट बनना है, और लाइट की जो पोटेंशियलिटी है वो 700 नैनोमीटर की है, जो लाइट ने क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया। और यहाँ हम देख रहे हैं P700 प्लांट के अंदर ADP के फॉर्म में खर्च हुई हुई एनर्जी थी, और लाइट के इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होने के बाद ADP कन्वर्ट हो गए ATP में, और इस प्रोसेस में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होते हुए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो फोटो सिस्टम फर्स्ट बना रहे हैं। So this process is called cyclic photophosphorylation. This process is called cyclic photophosphorylation. वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो रेस्पाइलेशन में डिफरेंस बताइए। जैसे कि हमने देखा साइक्लिक में केवल एक फोटो सिस्टम फर्स्ट बनता है जिसमें P700 नैनोमीटर की पोटेंशियलिटी होती है, लेकिन नॉन साइक्लिक में हमने देखा 2 फोटो सिस्टम बन रहे थे जिसमें P700 और P680 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही थी।
साइक्लिक फोटो में कोई फोटोलाइसिस नहीं होता, लेकिन नॉन साइक्लिक में फोटोलाइसिस हो रहा था। साइक्लिक के अंदर NADPH2 नहीं बनता, जबकि हम नॉन साइक्लिक में देख रहे थे यहाँ पर जेड स्कीम प्रोसेस हो रही थी, NADPH2 बन रहा था। तो ये है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक को भी ध्यान से देख लें, डायग्राम साइक्लिक का ऐसे ही बनेगा, एक फोटो सिस्टम में ये कंप्लीट हो रहा है। ओके, नाउ दिस इज साइक्लिक फोटो फोटोसिंथेसिस। So the excited electrons do not pass on the NADP but returns to photosystem first through electron transport system as de-energized electrons. Hence there is formation of ATP but no NADPH is formed. Cyclic photophosphorylation alone occurs when the light of wavelength higher than 680 नैनोमीटर इज़ अवेलेबल। तो ये हमने देखा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो ये जो सिस्टम है ये कौन सा है, साइक्लिक। नॉन साइक्लिक को हम देख चुके हैं, ठीक है। साइक्लिक का डायग्राम अच्छी तरीके से बना लेंगे। नॉन साइक्लिक का ये आ गया। अब आता है